Hello everyone. A very good morning students. I am Deepa and again here with the same chapter, Civics chapter 4, Understanding Laws. Content of the chapter and the important topics of the chapters are: what are laws? Do law apply to all? How do new laws come about? Unpopular and controversial laws. What should we as citizens do under such circumstances? Students, in my previous video, you have learnt about what are laws, do law apply to all, how do new laws come about. Today we'll learn about unpopular and controversial laws. How laws become unpopular and controversial. Yesterday you have learnt about how do new laws come about and what is the working of the parliament and how much important parliament role in the making laws and what they are doing for the entire country and when people face problems at that time parliament do what. So students, I hope that much you have understood well. And now let's move towards today's topic, that is unpopular and controversial laws. In this topic, we'll learn about how a law become unpopular and how people started to criticize that particular law and why they are doing this. Okay, so let's move towards the topic. Unpopular and controversial laws means अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून, यानी कि जो लोगों को पसंद नहीं है और जिस पर लोग बहस कर रहे हैं, विवाद हो रहे हैं, इस टाइप के कानून. Sometimes it so happens that laws passed by the parliament turn out to be unpopular. Sometimes a law can be constitutionally valid, hence legal, but it cannot continue to be unacceptable to people because they feel that the intention behind it is unfair and harmful. In such a situation, people might criticize this law by holding meetings, report to TV news channels, and write about it in the newspaper, etc. So, let's discuss in Hindi students. कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसी स्थिति आती है कि कई बार संसद के ऐसे कानून पारित कर देती है संसद जो क्या हो जाते हैं, बेहद अलोकप्रिय हो जाते हैं, अनपॉपुलर हो जाते हैं और जो वो अलोकप्रिय साबित होते हैं तो ऐसे कानून जो संवैधानिक रूप से लीगल हैं, संवैधानिक रूप से तो वो वैलिड हैं और लीगल भी हैं क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में वो है, फिर भी कानून के रूप से लीगल होने के बाद भी कानून सही नहीं हो सकता. ये हो सकता है कि वो कानून सही भी हो बट कई लोगों को वो अच्छा ना लग रहा हो, पसंद ना आ रहा हो, बट इट कैन कंटिन्यू बी अनएक्सेप्टेबल टू द पीपल बिकॉज दे फील दैट इंटेंशन बिहाइंड इट इज़ अनफेयर एंड हार्मफुल. हो सकता है लोगों को लग रहा हो कि इसके पीछे जो नीयत है, जो इंटेंशन है, वो अच्छी नहीं है, वो सही नहीं है. इसीलिए लोग क्या करते हैं, पीपल स्टार्टेड टू क्रिटिसाइज. इन सच सिचुएशन पीपल माइट क्रिटिसाइज दिस लॉ बाय होल्डिंग मीटिंग्स. तो लोग क्या करते हैं, उसकी आलोचना करते हैं कि दिस इज़ नॉट राइट and this should be done and this is not in the favor of such kind of the peoples. So they started to do what? They started holding meetings, report to TV news channels and write about it in newspapers. जनसभाएं होने लगती हैं और चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है, जो टीवी चैनल्स को रिपोर्ट भेजी जाती है और अखबारों में भी उसके आर्टिकल्स निकलने लगते हैं. इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं जो कि people started to do when they feel that it is not right and when they try to criticize any particular law. Let's move what they are doing next. In a democracy like us, citizens can express their unwillingness to accept repressive law framed by the parliament. When a large number of the people begin to raise voice against a wrong law, then parliament has to change it. We can make it clear through an example. Various municipal laws on the use of space within municipal limits
often make hawking and street vending illegal. So let's see in Hindi. Now I'm explaining in Hindi. हमारा जो देश है, जैसा हमारा देश है वो लोकतांत्रिक है, हम लोग कैसे लोकतांत्रिक देश के लोग हैं। लोकतंत्र में क्या होता है कि जो नागरिक है वो संसद के द्वारा जो भी नियम बनाए जा रहे हैं, हम आम नागरिकों के पास ये है कि अगर वो संसद कोई दमनकारी यानी कि रिप्रेसिव यानी कि कोई ऑप्रेस करने वाला या ज़बरदस्ती कोई लॉ बना रहा है फ्रेम्ड बाय द पार्लियामेंट, तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी अनविलिंगनेस शो कर सकते हैं, हम असहमति प्रकट कर सकते हैं, हम उसको रेडी नहीं हो सकते हैं उसको एक्सेप्ट करने के लिए। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि ये जो कानून है ये कैसा है, रॉन्ग है, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगिन टू रेज वॉइस, उसके अगेंस्ट में वॉइस खड़ी करते हैं, अपनी आवाज़ उठाने लगते हैं कि ये लॉ सही नहीं है, उस टाइम क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट हैज़ टू डू समथिंग स्पेशल, पार्लियामेंट हैज़ टू चेंज इट। उस समय जो हमारे संसद के ऊपर ये एक जिम्मेदारी आ जाती है और ये दबाव आ जाता है कि उसको उस पर दोबारा विचार किया जाए, उसको बदला जाए। दिस आई विल एक्सप्लेन यू विद एन एग्जाम्पल कि वेरियस म्यूनिसिपल लॉज हैं ऑन द स्पेस यूज विद इन द म्यूनिसिपल लिमिट्स ऑफन मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। जो नगर पालिका की सीमा होती है, नगर पालिका की सीमा के भीतर की जो जगह होती है उसको जब लोग इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे वेंडर्स वगैरह होते हैं, जो फेरी वाले होते हैं और जो नहीं दुकानों के बाहर पर अपनी छोटी छोटी शॉप्स खोल लेते हैं, दुकानें लगा लेते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं जो लगाते हैं वो कानून की तरफ से इलीगल है, मतलब वो गैर कानूनी घोषित किया गया, दैट वेंडिंग इज़ इलीगल, स्ट्रीट वेंडिंग इज़ मेक हॉकिंग एंड स्ट्रीट वेंडिंग इलीगल। ठीक है, ये कानून है, बट वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस लॉ एवरी टाइम। वाई? दिस विल डिस्कस लेटर। So let's move towards next slide. No one will dispute the necessity for some rules to keep the public space open for people's convenience so that people can walk on the pavement easily. At the same time, one cannot deny that hawker and vendors provide essential services. This is their means of livelihood also. Hence, the law favors one group and disregards the other one. It will be controversial and lead to conflict, surely. Now I am going to explain it in Hindi. Students, what happened कि हमने देखा कि नगर पालिका की सीमा के भीतर जो हमने जगह जो वेंडर्स यूज़ कर लेते हैं या जो शॉप्स वाले छोटी छोटी शॉप्स वाले यूज़ कर लेते हैं वो इलीगल है। बट ये लॉ बनाया क्यों गया? ये लॉ इसलिए बनाया गया कि जो ये डिस्प्यूट है ये सही भी है बट कुछ हद तक ये गलत भी है। ये लॉ बनाया गया है ताकि पीपल कैन वॉक ऑन द पेवमेंट ईजीली, पीपल लोग जो हैं सभी अपनी जो फुटपाथ पर आसानी से चल सकें, तभी छोटी छोटी शॉप्स नहीं होंगी, साफ़ सुथरा रास्ता मिलेगा लोगों को और सार्वजनिक स्थान बहुत क्लीन होगा और आराम से लोग आ जा सकेंगे। तो इट्स फॉर द पीपल्स कन्वेंस ऑल्सो। बट ये भी बात हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट डिनाई एट द सेम टाइम कि हॉकर और वेंडर जो होते हैं वो हमको बहुत एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं और वो बेचारे इतने गरीब होते हैं कि वो बड़े शहरों में जाकर के अपनी लाखों की शॉप्स नहीं खोल सकते और काफ़ी कुछ वो हम लोगों को बहुत सस्ते दामों पर चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, बहुत सारी गुड्स प्रोवाइड कराते हैं जो बहुत सस्ती होती हैं और वो हमें बहुत प्रॉपरली हम तक पहुंचा भी देते हैं। उन सब चीज़ों को हम लोग ईज़िली उन चीज़ों को ले पाते हैं उनके पास से। सो बिकॉज ऑफ दैट, और एक और बात सोचने वाली कि उन छोटे छोटे जो रोज़गार के लोग हैं, छोटे छोटे शॉप्स वाले लोग हैं, उनकी लिवलीहुड इसी पर डिपेंड होता है। दिस इज़ देयर मीन्स ऑफ लिवलीहुड, उनकी रोज़ी रोटी भी यही है। सो द लॉ फेवर्स वन ग्रुप, ये तो मान लिया कि एक जो हम सब लोगों के लिए इस लॉ ने फेवर किया, लेकिन उन लोगों के जो लोग बेचारे छोटे छोटे शॉप वाले हैं उनके लिए ये डिसरिगार्ड भी कर गया, ये मतलब उनके अगेंस्ट में भी चला गया। तो फिर इसीलिए ये जो लॉ हो जाता है कंट्रोवर्शियल हो जाता है और फिर क्या हो जाता है, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाते हैं, टकराव शुरू हो जाते हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं, है ना। इसमें एक समूह की तो बहुत हिमायत की गई है और दूसरे समूह की क्या की गई है, उपेक्षा की गई है।
है ना, disregards the others and favors one. This law favors one. Okay students, तो हमने मान लिया कि जो लोग सोचते हैं कि ये जो कानून है ये सही नहीं है, पर ये हमने देखा कि ये किसी भी तरीके से कई तरीके से ठीक भी है ना. सो लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यू स्लाइड. In such a situation, people can go to the court, which has the power to modify or cancel laws if it finds that they do not adhere to the constitution. The meaning of adhere is follow, fulfill और carry out करना, means follow करना, abide by the rules यानी rules का पालन करना. So ऐसे सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट कि लोग क्या कर सकते हैं, जिसमें लोग एग्री ना करें, जिस भी लॉ के साथ लोग एग्री ना करें, मतलब कि एक्सेप्ट ना कर पाएँ उसको, जिसका लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उस लॉ के अगेंस्ट में वो लोग कोर्ट भी जा सकते हैं. एंड दे हैज़ द पावर टू मॉडिफाई और कैंसिल द लॉज. और कोर्ट के पास क्या है, इसकी पावर है कि अदालत की शरण में जब वो जाएंगे तो अदालत को अगर ऐसा लगता है कि वो कानून संविधान के विरोध में है, मतलब संविधान के विरुद्ध में है, तो वो उसमें क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है, मॉडिफाई कर सकती है, और उसको क्या कर सकती है, रद्द भी कर सकती है, कैंसिल भी कर सकती है उस लॉ को. सो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, पीपल हैव फुल राइट टू प्रोटेस्ट अनजस्ट लॉ. तो जो हमारा ये लोकतांत्रिक देश है उसमें हम भारत के लोगों को पास ये फुल राइट है, पूरा अधिकार है कि वो जो लॉ अनजस्ट लॉ हो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकती है. So this is all about the students why law become unpopular and controversial. Let's move towards that what should we as citizens do under such circumstances. ऐसे circumstances में हमको क्या करना चाहिए, we as citizens हमको क्या करना चाहिए. We need to remember that our role as citizens doesn't end with electing our representatives. वी ऑल नो, जो भी लोग पार्लियामेंट में हैं वो सब हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव हैं. हमने उनको चूज़ करके, उनको इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट करके फिर उनको भेजा है हमने, वो हमारे द्वारा चूज़ किए गए हैं. तो हमें ये इस बात की ज़रूरत है, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी से केवल इतनी ही भूमिका नहीं है कि हम प्रतिनिधियों को चुनें, उसके साथ हमारी सारी भूमिका ख़त्म नहीं हो जाती है. वी शुड बियर इन माइंड that it is the extent, involvement and enthusiasm of the people that helps parliament perform its representative functions properly. हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी इस बात में है कि वो लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, उतने ही उस उत्साह से जब हम जुड़ेंगे तो हमारे संसद का काम क्या होगा, आसान होगा, और उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी. मतलब हमारा इन्वॉल्वमेंट कितना इम्पॉर्टेंट है, हमारा एंथुजियाज्म कितना इम्पॉर्टेंट है पार्लियामेंट की फंक्शनिंग के लिए. सो व्हाट वी शुड डू, वी शुड इन्वॉल्व एंड टेक पार्ट एंड कीप इन माइंड दैट आवर इन्वॉल्वमेंट इज़ नेसेसरी एंड वी आर हैविंग such a great role in the decision making process. So it's all about your chapter, students. I have explained it in Hindi also, so I hope you will be able to understand what are the things included in the chapter, and we are completed all the topics. So thank you so much students, thanks for listening. We'll start new chapter, we'll meet again. Thank you very much.